Good morning, friends. In today's lecture, we are going to study about wagering agreements, section 30. In the previous lecture, we have studied about certain agreement which are expressly declared as void, and one of that agreement is a wagering agreement. Just we have seen the overview of a wagering agreement in the previous lecture. Today we are going to delve in detail about wagering agreement. But before moving further, we will just revise what we have done in the previous lecture. On your screen you can see that expressly declared void agreement. Under that, first one was agreement in restraint of marriage. I told you that के कोई पर्टिकुलर एग्रीमेंट जिसके द्वारा आप एग्री करते हो, प्रॉमिस करते हो कि यू आर नॉट गोइंग टू मैरी, और अदरवाइज आप किसी से एग्रीमेंट करवाते हो कि वो आपको प्रॉमिस करे कि वो लाइफ टाइम या फिर अप टू पर्टिकुलर ईयर्स ही इज नॉट गोइंग टू गेट मैरिड, तो सच काइंड ऑफ एन एग्रीमेंट इज अ void agreement. उसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं रहेंगी. Those agreement cannot be enforced in the court of law. Second is agreement in restraint of trade. Under that we have seen that you cannot prevent any party from carrying on a certain lawful trade. However, we have seen that there are certain exceptions. Under exceptions we have seen that कि अगर कोई particular person partnership firm में है तो he can be prevented from carrying on the same business. Now objective is to safeguard the interest of partnership firm. In that case it cannot be called as a restraint of trade and it will not be void. Further we have seen that if there is a sale of goodwill, तो जो goodwill को purchase करेगा he can prevent the other party from carrying on the name or same business. So these were some of the exceptions as regards to restraint of trade. Then there was agreement in restraint of legal proceedings. Legal proceedings के restraint we have seen that you cannot prevent any party from going to the court of law, or you cannot enter into any agreement with the person which says that you are not going to go in a court of law, or I am not going to go in a court of law. Such agreement will amount to restraint of legal proceeding and will be void. उसके भी exceptions we have seen that in certain agreement we agree that we will go to a arbitrator rather than to the court of law, so such agreement will not be regarded as restraint of legal proceedings. It will be valid. Then there was uncertainty, that is agreement the meaning of which is uncertain or capable to be made certain. In that case we have seen that कि अगर कोई particular agreement जहाँ पे clarity नहीं है, the certainty नहीं है, there is an ambiguity, there is a vagueness, such kind of an agreement will also be called as a void agreement. Then there was a wagering agreement which we are going to deal in detail today. Then there was agreement contingent on impossible event. That means जो future event पे depend है और जो impossible है या जो होने वाला नहीं है, ऐसे event पे अगर आप कोई आज contract enter करते हो तो such kind of a contract will be invalid contract or void agreement. Agreement to do impossible act, कोई particular काम जिसमें आप promise करते हो ऐसा काम करना जो possible ही नहीं है, जो possible नहीं हो सकता है, तो such kind of an agreement will also be called as a void agreement. So today's crux of this lecture is to study about wagering agreement, which we are going to deal in detail. In the previous lecture I told you is wager is nothing but a betting. So it is very simple to understand what is a betting. अगर आप किसी से bet लगाते हो और उसमें आप वो betting जीत जाते हो, तो क्या आप सामने वाले पार्टी को अगर वो पैसा देने से मना करता है या फिर जो उसने प्रॉमिस किया है बेटिंग के अंदर वो देने से मना करता है, तो क्या आप उसे कोर्ट में ले जा सकते हो? तो आंसर इज नो, बिकॉज वेजरिंग एग्रीमेंट आर रिगार्डेड एज अ वॉइड एग्रीमेंट एंड इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज कि देयर आर n number of agreements. Some of the agreement are regarded as wager and some of them are not regarded as wager, and कुछ agreement में ambiguity है, even the government or a court is not clear.
तो उसमें वी विल हैव टू सी वेदर दे आर रिगार्ड एज वैलिड और वॉइड. तो जस्ट ऑन योर स्क्रीन विल रिफर दिस. Literally, the word wager means bet something stated to be lost or won on the result of doubtful issue, and therefore wagering agreement are nothing but ordinary a betting agreement. Thus, where A and B mutually agree that if it rains today, A will pay rupees 100, and if does not rain, B will pay rupees 100. It is a simple wager agreement. कि फ्यूचर अनसर्टन इवेंट है जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है. अगर वो फ्यूचर अनसर्टन इवेंट के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, जैसे कि कुछ केसेस वी हैव सीन दैट कि आपको ऑलरेडी पता होता है बट यू रिजेंबल दैट यू आर नॉट अवेयर विद दैट. जैसे कि इलेक्शंस के रिजल्ट्स है जो आपको पता है कि क्या आने वाले हैं, but you are still representing yourself that you are not aware with that. So they are not covered over here. Here we are covering those particular future events that are uncertain and the outcome of those events जिसके बारे में आपको उसके रिजल्ट के बारे में आपको पता नहीं है और उस पर आप कोई बेट लगाते हो, तो those events are covered over here. The essence of wagering is that one party is to win and other to lose upon a future event, which at the time of contract is of an uncertain nature. That is to say, if the event turns out one way, A will lose, but if it turns out the other way, he will win. Wager is a game of chance in which the contingency of either gain or loss is wholly dependent on uncertain event. That means the probability of winning and losing is 50%. 100%, you cannot say that. There is a probability. That is, when you toss the coin, there is a probability that it will be either head or it will be tail. The probability of winning and losing is 50%. An event may be uncertain not only because it is a future event, but because it is not yet known to the parties. Thus, a wager may be made upon the result of the cricket match which is to be taken place in the next month in Kolkata, and or upon the result of an election which is over if the parties do not know the result. However, if you are aware with the result, there is no question of this. You are not aware with these uncertain future event. So what is a crux of this wagering agreement? That they are based on a future event, and those future event are uncertain event, and those uncertain event are unknown to the parties. The parties to a wager must have no interest in the event happening or not happening except the winning or losing of the bet led between them. It is here that wagering agreement differ from insurance contract, which are valid because parties have interest to protect the life or property and have for that very reason entered into the contract of insurance. We will see that insurance contract are contingent contract, they are the valid contract, whereas wagering contract are the betting contract where the parties are not at all interested in the event. They are only interested in losing or winning. That means parties are interested only in the prize money. उनको सिर्फ ये देखना है in the case of wager के रिजल्ट क्या आता है जिसपे उनको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा. यानी उनका इंटरेस्ट सिर्फ उस पैसों में है, ना कि वो इवेंट में. इवेंट क्या होने वाला है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है. वो तो चाहते हैं कि इवेंट उनके फेवर में हो, जैसा उन्होंने बोला है. क्रिकेट में अगर मैं बोलता हूँ कि इंडिया शुड लूज सो दैट आई कैन विन 10 लाख रुपीज, तो मेरा इंटरेस्ट वो जीतने आए, मैं सिर्फ ये देखूंगा कि वो इंडिया हारनी चाहिए ताकि मुझे 10 लाख रुपए मिले. यानी मेरा इंटरेस्ट उस 10 लाख रुपए में, ना कि मेरा इंडिया के हारने या जीतने में. अगर मैं बोलता हूँ कि इंडिया के जीतने पे मैंने 10 लाख रुपए लगाया, तो यार इंडिया जीतना चाहिए बिकॉज आई एम एन इंडियन. ये मेरा कोई लेन देन नहीं है. मेरा सिर्फ ये देखना है कि इंडिया जीते. क्यों जीते? क्योंकि मेरे 10 लाख रुपए लगे और मुझे वो 10 लाख रुपए मिलेंगे. लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि इंडिया शुड लूज सो दैट आई कैन विन रुपीज 10 लाख, तो मेरा यहाँ पे अगेन इंटरेस्ट इंडिया जीतने या हारने पे नहीं है. मैं सिर्फ क्या चाहता हूँ कि इंडिया शुड लूज सो दैट आई कैन विन रुपीज 10 लाख. तो यहाँ पे वेजरिंग एग्रीमेंट में सिर्फ आपका इंटरेस्ट उस प्राइज मनी पे जो आपने लगाया है, बाकी आपको कोई इवेंट में इंटरेस्ट नहीं है. एसेंशियल्स ऑफ वेजर्स क्या है? Essentials of wagering agreement: there must be a promise to pay money or money worth. The promise must be conditional on the event happening or not happening. ऐसा हुआ तो मैं पैसा दूंगा या ऐसा नहीं हुआ तो आप पैसा दोगे. तो event happening और event not happening.
The event must be uncertain one. If one of the party has the event in his own hand, the transaction is not wager. That means if the party has a control over the event, or if one of the party is aware with the outcome, in that circumstances you cannot call that it is a wagering agreement. वेजरिंग एग्रीमेंट का क्रक्स क्या है कि वो फ्यूचर पे डिपेंड है और वो फ्यूचर इवेंट आपको उसके बारे में पता नहीं है, वो अनसर्टेन है और उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है. नो पार्टी शुड हैव अ proprietary interest ownership in the event. The stake must be the only interest which the parties have in the agreement. Stake यानी जो प्राइज मनी उस इवेंट में लगा है उस पे आपका इंटरेस्ट है, ना कि आपका proprietary interest. Proprietary interest in the sense you don't have any kind of a control over that particular event. जैसे कि मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था कि कल शाम में बारिश होगा या नहीं होगा, उस पे वी हैव बेट. होगा तो मैंने बोला था कि आप मुझे पैसा दोगे और नहीं होगा तो मैं आपको पैसा दूंगा. तो यहाँ पे वो बारिश होगा या नहीं होगा उस पे आपका या मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, बराबर. दैट इज आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ए प्रोप्राइटरी ownership or control over that entire event. तो such kind of an event जिसपे आप bet लगाते हो, तो this kind of a betting is called as a wager, and as per section 30 wagering agreement are a void agreement. That means that those agreement cannot be enforced in the court of law. Agreement by way of wager are void. That's what we are studying. Agreement made by way of wager are void. Example, where A and B enter into an agreement which provide that if England cricket team wins the test match against India, A will pay B rupees 1 lakh, and if it loses, B will pay rupees 1 lakh to A. Nothing can be recovered by winning party under the agreement, it being a wager. That means, अगर मैं वो bet हार गया and still I say that कि मैं नहीं दूंगा, आपको जो करना है आप कर लो. So in these circumstances, you cannot take the help of court of law because court has declared such kind of an agreement as a void agreement. यानी अगर यहाँ पे मैंने बोला और वैसा नहीं हुआ है, I am supposed to pay rupees 1 lakh, तो वो 1 लाख रुपए मैं अगर देने से इनकार करता हूँ तो आप मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हो. One more example I have given, just you can go through that. Similarly, where C and D enter into a wagering agreement and each deposit rupees 1 lakh with Z, instructing him to pay or give the total sum to the winner, no suit can be brought by the winner of recovering the bet amount from Z, the stakeholder. Stakeholder यानी ऐसा बंदा रहता है जो फॉर एग्जांपल जो जैसा अपन बुकीज को बोलते हैं, बुकीज क्या करता है, लोगों से पैसा लेता है और उसमें से फिर वो डिसाइड करता है कि कौन जीता और कौन हारा, उसको वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता है. जो हार जाता है उनके पैसे ले लेता है, जो जीत जाता है उनको पैसा डबल टिबल जो भी कंडीशन पे लगाया गया है उसको पैसा रिटर्न देता है. तो ये जो पूरा ऑर्गेनाइज करता है, द पर्सन हु ऑर्गेनाइज ऑल दिस आर कॉल्ड एज अ बुकी और ही इज कॉल्ड एज अ स्टेक होल्डर. तो ये स्टेक होल्डर्स के पास भी अगर आपने कुछ पैसा लगाया है और आप जीत गए और आप उससे पैसा मांग रहे हो, तो उसमें बोला गया है कि वो पर्टिकुलर अमाउंट भी आप वो बुकी से रिकवर नहीं कर सकते हो, बिकॉज दैट इज अ वेजरिंग एग्रीमेंट. आपने पैसा कौन से पर्पस के लिए लगाया था, वेजर पर्पस के लिए, तो वो पैसा आप जेड से रिकवर यहाँ पे नहीं कर सकते हो. Further, if Z has paid the sum to the winner, the loser cannot bring a suit for recovering his rupees 1 lakh either against the winner or against Z, the stakeholder, and even if Z has paid after the loser definite instruction not to pay. Of course, the loser can recover back his deposit if he makes the demand before the stakeholder had paid it over to the winner. यानी यहाँ पे अगर स्टेक होल्डर ने विनर को पैसा दे दिया तो लूजर स्टेक होल्डर से या विनर से पैसा रिकवर नहीं कर सकता है विद द हेल्प ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ. लेकिन अगर आपने स्टेक होल्डर के पास पैसा रखा है और उसने अभी तक विनर को पैसा नहीं दिया है, तो स्टेक होल्डर से वो लूजर अपना पैसा रिकवर कर सकता है बिफोर पेमेंट. आफ्टर पेमेंट ही कैनॉट डू यू कैनॉट डू एनीथिंग. यहाँ पे देर इज अ कंडीशन टू बी टेकन इनटू अकाउंट के ये पूरा एक रैकेट अगर आप देखा जाए तो दैट इज एंटायरली इलीगल एंड अनलॉफुल पार्ट. जैसा बुकी का केस होता है, बुकी को आप पैसा देते या बुकी के आप पैसा लगाते हो कि इंडिया शुड लूज
एंड वहाँ पे रहता है कि इंडिया की पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ पे जनरली ये किस तरीके से होता है कि दे से दैट 100 रुपये को 500 रुपये मिलेंगे अगर इंडिया लूज होंगी। तो जैसा जैसा पोजीशन इंडिया का स्ट्रांग होते जाता है, इन द केस ऑफ क्रिकेट मैच, विनिंग अमाउंट बढ़ते जाता है। यानी इफ इंडिया का मैच में ग्रिप अच्छा है तो उसके हारने पे आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये पूरा एंटायर रैकेट जो लगता है, एक पैसा इंडिया के जीतने पे लगाता है, एक इंडिया के हारने पे पैसा लगाता है, और ये पूरा ऑर्गेनाइज कौन करता है? वन ऑफ द पर्सन हु ऑर्गेनाइजेज इज कॉल्ड एज अ बुकी और अ स्टेक होल्डर। तो ये पूरा सर्कमस्टेंसेस जो पूरा सर्कल चलता है वो पूरा का पूरा अनलॉफुल है, बिकॉज एंटायर सर्कल एज रिगार्डेड एज अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट और एन एग्रीमेंट। एंड यहाँ पे आप एक दूसरे को जो पैसा लेन देन होता है विद द हेल्प ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ यू कैन नॉट रिकवर। आप मूवीज में देखते होंगे कि वो बुकी आपने 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए लगाया है एंड आप हार गए, तो वो पर्टिकुलर बुकी कभी भी कोर्ट में जाके पैसा वसूल नहीं करता है, बिकॉज दोज पर्टिकुलर एग्रीमेंट आर रिगार्ड एज ए अनलॉफुल। वो आपने देखा होगा मूवीज के अंदर कि वो अपने गुंडे भेजता है और बोलता है कि आप पैसा दो क्योंकि आपने पैसा लगाया था और आप हार गए। वहां पे वो कोर्ट का सहारा क्यों नहीं लेता है? क्योंकि दोज एग्रीमेंट आर रिगार्डेड एज अ अनलॉफुल एग्रीमेंट। फर्दर व्हाट इट सेज, now what it says, but even such deposit cannot be recovered by a loser in the state of Maharashtra and Gujarat where such agreement are regarded as a void and illegal. Now in some of the state such kind of a wagering agreement apart from regarding as void, they are also regarded as illegal. यानी अगर इस एग्जाम्पल में क्या बोला है कि अगर स्टेक होल्डर ने विनर को पैसा नहीं दिया है और उसके पहले लूजर उस स्टेक होल्डर से अपना पैसा वापस मांगता है, तो स्टेक होल्डर को वो पैसा वापस लूजर को देना पड़ेगा। लेकिन अगर उस एंटायर ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट ने या कोर्ट ने इलीगल करार दिया है, जैसे कि इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, उसमें बोला गया है कि ये ऐसे ट्रांजैक्शन ना ही सिर्फ वॉइड ही नहीं होंगे बल्कि इलीगल भी होंगे। तो उस सर्कमस्टेंसेस में अगर आपने स्टेक होल्डर को पैसा दिया और स्टेक होल्डर ने अभी तक विनर को पैसा नहीं दिया है, तो वो पैसा भी आप उस स्टेक होल्डर से वापस नहीं ले सकते। बराबर। तो दीज आर द रूल्स एज रिगार्ड्स टू द वेजरिंग एग्रीमेंट। फर्दर व्हाट इट सेज, these are some of the things where we are going to study कि such kind of a wagering agreement are void or valid, and you will have to learn this because it has been asked in the examination. Now what it says, exceptions, horse races. तो horse races को वेजर करार दिया है या नहीं दिया है? अगर दिया है तो कब वो वेजर है और कब वो वेजर नहीं है? we'll see this in exceptions. Now what it says, the section makes an exception in favor of certain prizes for horse racing. You might have seen in movies horse race. बड़े के बड़े हॉर्स रेसेस ग्राउंड पे होते हैं कि उनके ग्राउंड्स होते हैं, तो जहाँ पे देर आर आप वो उन पे बैटिंग लगाते हैं कि ये पर्टिकुलर घोड़ा जीतेगा या हारेगा बोल के। तो व्हाट इट सेज, a bet on a horse race carrying a prize of ₹500 or more to the winner has been made valid under the exceptions. यानी क्या बोला गया है कि अगर हॉर्स रेसिंग के ऊपर प्राइज मनी 500 रुपए या उसके ऊपर है तो गवर्नमेंट ने उसको वैलिड करार दिया है। यानी यहाँ पे हॉर्स रेस बिलो ₹500 अगर है तो वो वॉइड है।
क्यों ऐसा किया गया है कि 500 रुपए के अंदर है तो वो वॉइड है और 500 रुपए के ऊपर है तो वो वैलिड है? जस्ट बिकॉज कि अगर 500 रुपीज के अंदर आपने बैटिंग लगाया है, 500 रुपीज के ऊपर अगर हॉर्स रेस पे बैटिंग लगाया है, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि वो वैलिड है, दोज एग्रीमेंट आर इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन 500 रुपीज के अंदर अगर बैटिंग आपने लगाया है तो वो वॉइड है। क्यों ऐसा किया गया है? इन ऑर्डर टू डिस्करेज द पुअर पीपल कि वो ऐसे बैटिंग में इन्वॉल्व ना हो। 500 रुपए के नीचे लगाने वाले जनरली दे विल बी बिलो पॉवर्टी लाइन और दोज पीपल विल बी पुअर पीपल। तो इन ऑर्डर टू डिस्करेज दोज पीपल, उनके लिए ये बोला गया है कि 500 रुपए के अंदर अगर आप हॉर्स रेस पे बैटिंग लगाते हो वो वैलिड नहीं है, वो वॉइड है। 500 रुपए के ऊपर अगर लगाते हो तो दे आर वैलिड एग्रीमेंट। But with a view to protecting the poor person from gambling, a bet on a horse race carrying a prize of less than rupees 500 remains a wager. That means it will be void. Another important point, it is important to note that in the state of Maharashtra and Gujarat, wagering agreement are by local statute not only void but also illegal. As a result of this, in this state, the collateral transaction to wagering agreement become tainted with illegality and hence void. What does it mean? कि कुछ स्टेट्स में wagering agreement are only void. उसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर उनसे collateral transaction है, उनसे related transaction है, तो they may be valid. इसका मीनिंग ये है कि suppose any state other than state of Gujarat and Maharashtra है, जैसे कि आप एज्यूम कर लो कि वो हरियाणा स्टेट है। हरियाणा स्टेट में से मैंने मिस्टर सुनील से 1 लाख रुपए लिया एज अ लोन और वो 1 लाख रुपीस मैं वेजरिंग ट्रांजेक्शन्स पे लगाता हूँ। तो जो मैंने सुनील से या अनिल से 1 लाख रुपए लिए हैं एज अ लोन, तो दैट एग्रीमेंट दो इट इज अ कोलेट्रल टू वेजरिंग एग्रीमेंट, इट विल बी रिगार्ड एज ए वैलिड, यानी वो 1 लाख रुपीस मुझे वापस देना पड़ेगा। लेकिन ये जो वेजरिंग एग्रीमेंट है दे आर कॉल्ड एज अ वॉइड। यानी इफ देयर आर 3 पार्टीज ए बी एंड सी, बी एंड सी के बीच में बेटिंग ट्रांजेक्शन है, वेजरिंग ट्रांजेक्शन है, और ए एंड बी के बीच में लोन ट्रांजेक्शन है, तो ए एंड बी विल बी कॉल्ड एज अ कोलेट्रल ट्रांजेक्शन टू बी एंड सी। इफ इट इज नॉट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, अ contract between A and B is valid, B and C is invalid. However, if this transaction is in the state of Maharashtra or Gujarat, even the transaction between A and B will be regarded as invalid, illegal, because they have regarded a transaction between B and C as illegal. तो अगर आपका मेन ट्रांजेक्शन इलीगल है तो उससे कोलेट्रल ट्रांजेक्शन भी इलीगल माना जाएगा, जो डिसीजन आया है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। यानी महाराष्ट्र एंड गुजरात के स्टेट में अगर वेजरिंग ट्रांजेक्शन होता है तो उससे रिलेटेड वो वेजरिंग ट्रांजेक्शन ना ही सिर्फ वॉइड ही नहीं होगा बल्कि इलीगल भी रहेगा, और उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स भी माने जाएंगे आपके इलीगल। लेकिन दूसरे स्टेट्स में अगर है तो वेजरिंग ट्रांजेक्शन्स आर रिगार्ड एज वॉइड, लेकिन उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन में भी रिगार्ड एज वैलिड। What it further says, there are certain commercial and speculative transactions which you have to remember. Speculative transactions. Speculative transaction generally क्या होता है कि जैसे this speculative transaction generally happens in those areas जहां पे there is a heavy fluctuation of prices, जहां पे prices मिनट टू मिनट चेंज होता है या डे टू डे चेंज होता है। तो इन दिस केसेस देर आर जनरली अ स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन। अब स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन के बारे में गवर्नमेंट ने बोला है कि स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन में बी अ वेजर और मे नॉट बी अ वेजर, इन द सेंस कि अगर स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन में आप एंटर्ड हो रहे हो और जहां पे आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप गुड्स की लेन देन करने वाले हो, जो भी प्राइस हो, जैसे कि आई एंटर द ट्रांजेक्शन विच इज कॉल्ड एज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी आज मैंने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड किया है,
जो मटेरियलाइज होने वाला है फ्यूचर के अंदर, लेकिन जिसके प्राइजेस आज फिक्स हो गए। जैसे कि यू कैन से दैट के कुछ एरियाज में जहां पे प्राइस फ्लक्चुएशंस होता है, तो वहां पे पार्टीज क्या करती है, आज ही कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेती है, लेकिन उसका मटेरियलाइजेशन ट्रांजैक्शन का हैपनिंग फ्यूचर में होता है, ताकि उस डे पे जो भी प्राइजेस हो उसका आपको और मुझे फर्क ना पड़े। जैसे कि डॉलर्स के प्राइजेस डे टू डे चेंज होते हैं। टुडेज द डॉलर प्राइस इज फॉर एग्जांपल 75 रुपीज पर डॉलर। अब मेरा फॉर एग्जांपल एक यूएस से कंटेनर आने वाला है इन द मंथ ऑफ अगस्त, और जहां पे मुझे $1000 का पेमेंट करना है। टुडेज प्राइस ऑफ ए डॉलर इज ₹75। तो मैं आपके साथ एक ट्रांजेक्शन एंटर करूंगा। सपोज यू आर अ बैंकर एंड आई एम अ इंपोर्टर, जो मैं यूएस से माल मंगा रहा हूं। मैं आपकी बैंक में आता हूं, आई एम योर कस्टमर एंड आई टेल यू दैट कि मुझे अगस्त में 16 अगस्त को मुझे $1000 लगने वाले। आप मुझे बताइए, आज ही बताइए कि आप मुझे क्या प्राइस पे वो डॉलर दोगे। तो आप कैलकुलेशंस करते हो और आप मुझे बोलते हो कि 16 अगस्त को $1000 यू कैन गिव मी द डॉलर एट द रेट ऑफ ₹80 पर डॉलर। हालांकि आज का प्राइस क्या है, ₹75, लेकिन आप मुझे सभी कैलकुलेशन करके ये बोलते हो कि आप मुझे $1 ₹80 में देंगे, यानी $1000 विल बी इक्वल टू 80,000 रुपीज। अब यहां पे होता क्या है कि नाउ आई एम श्योर दैट कि मेरा जो इंपोर्ट कंटेनर आने वाला है उसके मुझे 80,000 रुपए देने। अब 16 अगस्त को डॉलर का प्राइस 85 भी रहा तो वो बैंक मुझे 80 रुपीज में ही देगा, या फिर उस दिन डॉलर का प्राइस 78 रुपीज रहा तो भी मुझे वो डॉलर 80 रुपीज में ही खरीदना पड़ेगा। यानी यहां पे हुआ क्या, मेरे माइंड से नाउ आई एम एंटायरली सेटल कि जो भी प्राइस हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे 80,000 रुपए में वो गुड्स इंपोर्ट होने वाले। नाउ आई एम श्योर दैट कि अगर अब ये गुड्स का मुझे किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो मुझे 80,000 रुपीज के ऊपर करना है, सो दैट आई कैन मेक अ प्रॉफिट। Now whatever is the price on that day of a dollar, I am not bother about this. So such kind of a contract is called as a forward contract, जहां पे you entered the terms and condition as on today, but which is going to get materialized in the future. This is called as a forward contract. अब यहाँ पे speculation कैसा, अब यहाँ पे suppose 16 अगस्त आता है और डॉलर की प्राइस होती है 82 रुपीज, तो भी बैंक मुझे कितने में देगा, बैंक इज गोइंग टू गिव मी द डॉलर एट ₹80। आई एम गोइंग टू गिव द बैंकर 80,000 रुपीज एंड आई एम गोइंग टू टेक फ्रॉम बैंकर $1,000, और वो $1,000 मैं मेरे एक्सपोर्टर को जो यूएस में बैठा है उसको दे दूंगा। या फिर उस दिन प्राइस डॉलर का 72 रुपीज रहता है तो भी मुझे बैंक को 80,000 रुपीज देना है, $1,000 लेने और वो एक्सपोर्टर को पे करना है। तो यहां पे इंटेंशन मेरा क्या था एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ ट्रांजैक्शन, कि मुझे प्राइस फ्लक्चुएशन से पैसा कमाना वाज नॉट माय ऑब्जेक्टिव। मैं कोई गैम्बलिंग नहीं कर रहा हूं। यहां पे मेरा प्योर शॉर्ट ये इंटेंशन था कि मैं उस ट्रांजैक्शन को मटेरियलाइज करूंगा बाय पेमेंट एंड टेकिंग द डिलीवरी। तो सच काइंड ऑफ ए ट्रांजैक्शन will not be called as a speculative, it will be a valid transaction. अगर आप उसको speculative भी बोलते हो मगर आपका intention डिलीवरी लेने देने का था, तो दो speculative transaction will be a valid transaction. However, if you have entered into such kind of a transaction only with an intention of gambling, कि उस दिन अगर प्राइस 80 रुपीज फॉर एग्जाम्पल 80 रुपीज में मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया और बैंक का वो डॉलर का प्राइस 82 रुपीज हो जाता है, तो मेरा 2 रुपीज पर डॉलर का फायदा हो जाएगा। और अगर उस दिन डॉलर का प्राइस 76 रुपीज हो जाता है तो आई एम गोइंग टू मेक अ लॉस ऑफ ₹4 पर डॉलर।
तो यहाँ पे मुझे डॉलर लेने देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ डिफरेंस इन प्राइस का सेटलमेंट अगर करना है तो ऐसे स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन को कोर्ट ने करार दिया है वेजरिंग ट्रांजैक्शन एंड दे आर वॉइड। तो सच स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन एंटर्ड with an intention to gambling will be called as void. Just we'll go through this. Agreement for sale and purchase of a commodity or a share market transaction in which there is a genuine intention to do legitimate business, that is a lawful business, that is to give and take the delivery of goods or shares, are not wagering agreement. यानी जहां पे आपका intention उस जो भी प्रोडक्ट में आपने, यहाँ पे अपने एग्जांपल में प्रोडक्ट वाज $1, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट कुछ और है, जैसे कि शेयर्स आपका प्रोडक्ट है, तेल आपका प्रोडक्ट है, ऑयल जिसमें आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो, कॉटन बेल्स आपके ट्रांजैक्शन है, गोल्ड में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो ये सब ट्रांजैक्शन में प्रोडक्ट क्या है, ये सब चीजें गोल्ड, कॉटन बेल्स, ऑयल्स। तो इसमें आप आज कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो, लेकिन जिसकी डिलीवरी आपकी फ्यूचर में होने वाली है और वही रेट पे होने वाली है जो आज फिक्स हुआ है। तो आपका ऐसा इंटेंशन है कि आप पैसा देंगे और वो माल लेंगे जो प्राइस आज फिक्स हुई है। दीज आर कॉल्ड एज अ वैलिड ट्रांजैक्शन, दे आर नॉट वेजरिंग ट्रांजैक्शन। If there is no such genuine intention and party only want to gamble on the rise or fall of the market by paying or receiving the difference in price, the transaction would be a wagering agreement and therefore void. In order to constitute a wagering contract, neither party should intend to perform the contract itself but only to pay the difference. यानी अगर आपका डिलीवरी लेने देने का कोई इंटेंशन नहीं है एट द स्टार्ट व्हेन यू हैव एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, you just wanted to settle the transaction by way of price difference, तो ये ट्रांजैक्शन को गैम्बलिंग माना जाएगा, वेजर माना जाएगा, एंड दोज ट्रांजैक्शन आर void. Example: A entered into an agreement with B to buy 100 bales of jute at rupees 150 per bale for forward delivery after 6 months. This is proposed transaction of purchase at the rate of 150 per bale. What if the price at the time of delivery goes up to rupees 200? A has the following two options. यहाँ पे क्या ट्रांजेक्शन हुआ है? आज मैंने आपके साथ एक ट्रांजेक्शन किया है कि मुझे 6 महीने बाद 100 बेल्स ऑफ कॉटन, 100 बेल्स का मीनिंग है जो लत्था रहता है कॉटन का, दैट दे आर कॉल्ड एज बेल्स. Per bale, I am ready to purchase single bale at the rate of rupees 150. और मुझे ऐसे कितने बेल चाहिए? 100 बेल चाहिए. That means you are going to sell me 100 bales of cotton. Per bale rupees 150. यानी टोटल ट्रांजेक्शन, टोटल कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कितना हो रहा है? 100 मल्टीप्लाइड बाय 150, 15,000 रुपीज. यानी आफ्टर 6 months, फॉर एग्जाम्पल इन December, you are going to deliver me 100 bales of cotton and I am going to pay you rupees 15,000. तो this is an contract entered between you and me. अब जब 6 महीने बाद दिसंबर आता है तो मैं क्या करूंगा? आपके पास 15,000 रुपए लेके जाऊंगा और आपसे वो 100 बेल्स ऑफ कॉटन ले लूंगा. अब सपोज उसी दिन कॉटन बेल्स का प्राइस मार्केट के अंदर 200 रुपीज हो जाता है, तो मैं सिर्फ क्या करूंगा? आपसे 100 बेल्स ऑफ कॉटन 15,000 रुपए में लूंगा, उसको मार्केट में ले जाऊंगा और 20,000 रुपए, 200 रुपीज पर बेल मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 20,000. आई एम गोइंग टू सेल इट फॉर 20,000 रुपीज इन द मार्केट एंड आई एम गोइंग टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5,000 ऑन द एंटायर ट्रांजेक्शन. क्यों ऐसा? क्योंकि आपने मुझे 150 पे प्रॉमिस किया था कि आप 150 रुपए में मुझे दोगे. तो अब प्राइस 150 का 200 हो जाए या 150 का 125 हो जाए तो भी आपको 150 पे मुझे देना पड़ेगा. तो मैं सिंपल क्या करूंगा? 150 रुपए में आपसे लूंगा, दैट इज 15,000 रुपए में कॉटन बेल्स लूंगा, मार्केट में उसको 20,000 में बेच के 5,000 रुपए का नफा, प्रॉफिट आई एम गोइंग टू मेक. नाउ दिस वाज द एंटायर इंटेंशन बिहाइंड द ट्रांजेक्शन. बट वन मोर थिंग आई कैन डू दिस इज at the time of settlement, that is in the month of December, आप मुझे ये बोलते हो कि सर कि 15,000 रुपए में आप मुझे कॉटन बेल्स दोगे और मैं फिर मार्केट में ले जाऊंगा और 20,000 रुपए में बेचूंगा और 5,000 रुपए का नफा कमाऊंगा. तो आप मुझे एक ऑफर देते हो
कि इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस एक्सरसाइज व्हाई डोंट यू टेक 5,000 रुपीज प्रॉफिट फ्रॉम यू इटसेल्फ, आप मुझे 5,000 रुपए का नफा देने तैयार हो। मगर इनिशियली जब मैंने ट्रांजैक्शन एंटर्ड किया था तो ऐसा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं तो प्योरली क्या करने वाला था, माल लेने वाला था और एक्सटर्नल मार्केट में बेच के पैसा कमाने वाला था, या फिर अगर प्राइस कम हो जाती तो मुझे लॉस भी अर्न करना पड़ता था। लेकिन बाय चांस इस सिचुएशन में क्या हुआ है कि देयर इज अ इंक्रीज इन प्राइस, तो आप मुझे बोलते हो कि आप 5,000 रुपए एज अ प्रॉफिट मुझे देने तैयार हो, तो मैं बोलता हूं मैं वैसा भी आपसे माल लेके मार्केट में बेच के 5,000 रुपए का नफा कमाने वाला था, तो व्हाई डोंट आई शुड टेक अ प्रॉफिट फ्रॉम यू इटसेल्फ। वो मैं रेडी हो गया। तो ये ट्रांजेक्शन वॉज सेटल विद डिफरेंस इन प्राइस, बट स्टिल इनिशियल इंटेंशन वॉज नॉट ऑफ एन स्पेकुलेशन, दैट इज वेजर का इंटेंशन नहीं था, तो ये माना जाएगा वैलिड। अगर वाइसे वर्सा देखते हैं कि सपोज उस दिन कॉटन बेल्स का प्राइस हो जाता है 125 रुपए, तो दिसंबर मंथ में मैं आपसे 150 में मैंने एग्री किया था, मैं आपसे 15,000 रुपए में वो कॉटन बेल्स लेता था और मार्केट में जाके उसको बेचता था। वो कितने में बिकता था, उस दिन मार्केट का प्राइस है 125, तो मेरे 12,500 रुपए में उस एक्सटर्नल मार्केट में बिकता था। तो मेरा लॉस कितना होता था, आपसे 15,000 रुपए में लेता था और 12,500 रुपए में बेचता था, मेरा 2,500 रुपए का लॉस होता था। तो इस सिचुएशन में अगर मैं आपको ऑफर देता हूं कि आपसे मैं 15,000 रुपए में लू, फिर मार्केट में जाके मैं 12,500 में बेचूं, तो मेरा 2,500 का लॉस होगा, तो मैं आपको बोलता हूं ये एक्सरसाइज एंटायर करने के बाद भी आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी प्रॉफिट, आई एम गोइंग टू मेक अ लॉस ऑफ 2,500। तो व्हाई डोंट यू टेक 2,500 फ्रॉम मी इटसेल्फ एट दिस जंक्चर। मैं आपसे कुछ कॉटन बेल्स लूंगा नहीं और बेचूंगा नहीं, जो मेरा एंटायर ट्रांजेक्शन में लॉस होने वाला है वो लॉस मैं आपको देने तैयार हूं। तो इनिशियल इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फाइनलाइजेशन जब हो रहा है तो आप प्राइस सेटलमेंट में उसको सेटल कर रहे हो, प्राइस डिफरेंस में आप उसको सेटल कर रहे हो, तो ये ट्रांजेक्शन माना जाएगा वैलिड ट्रांजेक्शन। इट विल नॉट बी रिगार्ड एज अ वेजर। व्हाट इट सेज, अगर प्राइस 150 से 200 हो जाती है तो आउटकम क्या है, to take the delivery of 100 bells at the contracted rate of 150 per bell and sell it to some other buyer and make a profit of rupees 50 per bell. 50 multiplied by 100 will be 5,000. Or to simply collect the difference of rupees 50 per bell from B, so it will be regarded as valid. Similarly, what if the price at the time of delivery goes down to 125 per bell? To take the delivery of 100 bells at a contracted rate of 150 and perhaps sell it to some other buyer and incur a loss of 25 per bell, or to pay a difference of 25 per bell to B and close the contract. तो अगर मैं इस तरीके के ट्रांजैक्शन करता हूं, यानी प्राइस सेटलमेंट कर लेता हूं, लेकिन अगर इनिशियली मेरा इंटरेस्ट ऐसा है कि मुझे कुछ लेन देन करना ही नहीं है, जो भी प्राइस अप एंड डाउन होता है, प्राइस ऊपर चले गया आपसे नफा ले लूंगा, प्राइस नीचे चला गया मैं आपको पैसा दे दूंगा, अगर यही इंटरेस्ट से आप और मैं कोई ट्रांजैक्शन में एंटर्ड होते हो, तो दिस ट्रांजैक्शन विल बी कॉल्ड एज अ स्पेकुलेशन इन द नेचर ऑफ वेजर एंड विल बी वॉइड। हाउएवर इनिशियली आपका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है एंड योर इंटेंशन वाज अ प्योर इंटेंशन टू सेटल द ट्रांजैक्शन विद डिलीवरी ऑफ गुड्स, in that particular cases the transaction will not be called as a wager, though ultimately at the time of settlement it was settled with the price difference, but initial intention आपका ऐसा नहीं था, तो such speculative transaction will not be called as a wager and it will be valid. It can be enforceable in the court of law. In the above example, if the original intention of the parties was only to settle the different price, then it would be a wagering contract which would be void. However, if there was no such intention, the contract is called as a forward or future contract and contract is valid. While gambling and wagering are prohibited by law, speculation, if not in the form of wager, is valid. Speculative, delivery is your intention, valid. Speculative, delivery is not your interest is to settle the transaction by way of price fluctuation, will be wager and will be void. For the lotteries के बारे में there is a dual view. Lotteries purely is in the nature of wager and the transaction involving lottery are void transaction. In the state of Maharashtra and Gujarat, sale of lottery ticket, even though it has been made, though it is void, not only it is void, it is also regarded as illegal. लेकिन एक दिक्कत इसमें यह है कि
गवर्नमेंट ने इसको बोला गया है कि आपको पनिशमेंट नहीं होगा अगर आप लॉटरी बेचते हो या लॉटरी खरीदते हो अंडर इंडियन पीनल कोड। अब ऐसी बहुत सारी चीजें आपको इंडिया में मिलेंगी कि कंट्रोवर्शियल नेचर की है, दो इट इज देश के लिए, समाज के लिए, कम्युनिटी सोसाइटी के लिए, स्टेट के लिए, लेकिन यू कैन से दैट के सोसाइटी और कम्युनिटी के लिए वो एडवांटेजेस नहीं है, वो नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उसको बैन नहीं करता है। जैसे लॉकडाउन के केस में द बेस्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन इज अ सेल ऑफ लीकर। जैसे कि आपने देखा कि लीकर उन्होंने चालू कर दिया, लेकिन बाकी चीजों में उन्होंने रेस्ट्रिक्शन डाल के रखे। क्यों ऐसा करके रखा है? आपने जब देखा होगा कि इनिशियली जब लीकर की शॉप ओपन की तो सबसे ज्यादा गर्दी उस लीकर के शॉप पे थी, लाइन लगी हुई थी, 2 किलोमीटर्स 5 किलोमीटर्स ऑफ लेन लगा हुआ था। उनका इंटरेस्ट क्या उससे कोरोना नहीं फैल रहा था? डेफिनेटली फैल रहा था, लेकिन फिर भी इवन दो इट इज डिसएडवांटेज टू द सोसाइटी बट स्टिल दे हैव ओपन दैट। व्हाई? बिकॉज फ्रॉम सेल ऑफ लिकर दे गेट अ हायर टैक्स। दैट्स द रीजन दे हैव ओपन, they have made open sale for sale of liquor. In the similar manner, sale of lottery, आप देखते हो कि लॉटरी में कितने लोगों ने अपना घर बार बिकवा दिया, तो इट इज अ डिसएडवांटेज, इट इज डीमेरिट टू द सोसाइटी। बट स्टिल गवर्नमेंट ने इंडिया में बोला है कि अगर आप लॉटरी पे पैसा लगाते हो तो वॉइड है। वॉइड इन द सेंस, अगर आपने पैसा जीत गए और फिर भी लॉटरी वाला आपको पैसा नहीं दे रहा है तो कोर्ट में मत आइए, हम आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसको फिर भी गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है, यानी क्या बोला है गवर्नमेंट ने, अगर आप ये ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होते, सेल एंड परचेज ऑफ लॉटरी, तो हम आपको पनिशमेंट नहीं देंगे। क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि सेल ऑफ लॉटरी पे जीएसटी एप्लीकेबल है और उनको हायर टैक्स मिलता है, तो that's the reason they have authorized. But at the same time, what they have given a judgment कि sale of lottery is void, यानी वो void है, लेकिन हम आपको पनिशमेंट उस पर नहीं देंगे। यानी अगर आप ऐसे void ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होते हो, आप जीतते हो और आपको पैसा सामने वाला नहीं दे रहा है, तो आपको खुद निपटना है, कोर्ट इंटरटेन नहीं करेगा। तो दैट इज व्हाट। मगर लॉटरी far and more it is regarded as void and it will come in the nature of wager. What it says, a lottery is a game of chance, hence the lottery business is a wagering transaction. Such transaction is not only void but also illegal because section 290A of the Indian Penal Code declares conducting a lottery a punishable offence. However, if a lottery is authorized by the government, the only effect of such permission is that the person conducting the lottery, that is the person running the lottery and the buyer of the lottery ticket, will not be guilty of criminal offence but the lottery remains a wager. This is absolutely a controversial कि हाँ हम आपको पनिशमेंट नहीं देंगे, लेकिन अब अगर उसमें कोई डिस्प्यूट हो गया तो आप कोर्ट में भी मत आओ। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन एज रिगार्ड्स टू लॉटरी आता है तो यू कैन से दैट लॉटरी इज अ प्योरली अ वेजरिंग एग्रीमेंट एंड दोज एग्रीमेंट आर वॉइड। However, in some of the state they are also regarded as illegal, जैसे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। लेकिन just because it has been authorized by the government, punishment लॉटरी ऑर्गेनाइजर को या बायर ऑफ द लॉटरी को एप्लीकेबल नहीं है। Then there is a crossword puzzle and competition. क्या बोला गया? Crossword puzzle in which the prize depends upon the correspondence of the competitor's solution with a previously prepared solution kept with the editor of the newspaper is a lottery and therefore a wagering transaction. Crossword puzzle में ऐसा बोला गया कि अगर आप crossword puzzle में entered होते हो जिसका solution already editor के पास prepared है, वो उसके solution से though your solution may be correct but he is going to verify your solution with the pre-made solution. That means he has already prepared that particular solution और उसने उस solution आपको क्रॉसवर्ड पजल न्यूज़पेपर में आज दिया है जिसका solution ऑलरेडी एडिटर्स के पास है। आप वो क्रॉसवर्ड पजल को फिलअप करके देते हो,
and then that editor verify your solution with his already prepared solution, and if that particular solution matches with his solution, then he is going to give you the price. तो what it says, अगर ऐसे ट्रांजेक्शन है जहां पे solution already prepare है जिससे आपका solution verify हो रहा है, तो such crossword puzzle will be regarded as in the nature of wager and will be void. That means अगर आप उस crossword puzzle में जीत जाते हो और फिर भी आपको एडिटर पैसा नहीं देता है, या फिर एडिटर बोलता है कि उसके सॉल्यूशन से आपका सॉल्यूशन दो इट इज करेक्ट मगर वो मैच नहीं हो रहा है, तो फिर भी आप उसके खिलाफ कुछ भी केस फाइल नहीं कर सकते बिकॉज दे आर वॉइड. राइट. Next topic is under this is, just a moment. What it says, crossword puzzles was given in a magazine. Above mentioned clause was stated in the magazine. Anshu solve his crossword puzzle in solution correspondent with the previously prepared solution kept with the editor. Held this was a game of chance and therefore a lottery wagering transaction. That means crossword puzzle जिसमें already prepared solution से आपका solution अगर match होता है या match नहीं होता है whatever, तो such kind of a crossword puzzle will be regarded in the nature of wager and it will be void. Further, what it says, crossword puzzle, picture competition, athletic competition where prizes are awarded on the basis of skill and intelligence are the game of skill and hence such competition are valid. According to the Prize Competition Act 1955, prize competition in a game of skill are not wager provided the prize money does not exceed ₹1000. That means अगर crossword puzzles है, competitions है, जहां पे प्राइज मनी इज लेस देन ₹1000 और जहां पे ऑलरेडी प्रीपेड सॉल्यूशन से आपका सॉल्यूशन वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो सच काइंड ऑफ ए ट्रांजैक्शन विल बी रिगार्डेड एज नॉट इन द नेचर ऑफ वेजर एंड इट विल बी रिगार्डेड एज अ वैलिड ट्रांजैक्शन. लेकिन अगर क्रॉसवर्ड पजल जहां पे ऑलरेडी सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड है और उससे आपका सॉल्यूशन वेरीफाई हो रहा है तो वेजर है. लेकिन अगर स्पेशली अगर वो आपके एंटायरली स्किल पे आपको कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो आप आपके स्किल के बेसिस पे यू आर गोइंग टू विन, देन दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिगार्डेड एज अ वेजर प्रोवाइडेड द प्राइज मनी शुड बी लेस देन ₹1000. यू हैव टू रिमेंबर दैट. फर्दर, transaction resembling with wagering transaction but are not void. There are certain transactions which they have said that कि वो आपको लगेंगे वेजर लेकिन वो वेजरिंग नहीं है, they are called as valid transaction. What are they? Those transactions, we'll see that. Chit fund. Now what is a chit fund? You can see that कि chit fund जो अपन BC जिसको बोलते हैं, जिसमें people जो है सभी एक monthly contribution करते हैं. There is a group of, for example, 10 people and all of them are contributing 10,000 rupees per month. तो ऐसा 1 लाख रुपए हर महीना वो लोग जमा करते हैं और फिर एक होटल के अंदर या कहीं पे भी एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसमें से एक चिट निकालते हैं और जो भी जिसका भी चिट निकलता है उसको वो पूरे 1 लाख रुपए मिल जाते हैं.
लेकिन उसको आगे के मंथ्स में भी 10,000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करते रहना है। तो सच काइंड ऑफ ए ट्रांजेक्शन जो लकी विनर को पैसा मिलता है, तो दैट पर्टिकुलर चिट फंड विल नॉट बी रिगार्ड एज अ वेजर, इट इज अ वैलिड ट्रांजेक्शन। देन देयर इज अ कमर्शियल ट्रांजेक्शन और अ शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन, जहां पे प्राइस फ्लक्चुएशन हर सेकंड पे होता है या फिर हर दिन होता है, वहां पे आप कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो विद एन इंटेंशन टू गिव एंड टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। However, your not interest is to settle by way of price fluctuation. So such kind of a transaction will be regarded as a valid transaction and will not be void. Then there is a game of skill and athletic competition. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जहाँ पे आप आपके स्किल्स पे कोई कंपटीशन में भाग लेते हो और आपके स्किल पे आप उस गेम को जीतते हो, अगर वहां पे प्राइज मनी इज लेस देन ₹1000, then that particular transaction will not be regarded as wager and will not be void. Then there is an insurance contract. Insurance is a type of contingent contract, और contingent contract को in detail we are going to refer in subsequent unit. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, यहाँ पे भी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड होता है कि अगर आप क्या आग लगी तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगा, अगर आग नहीं लगी तो जो आपने प्रीमियम दिया है वो फॉरफिट हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज ए। सिमिलरली देयर इज अ लाइफ इंश्योरेंस, आप हर साल एक प्रीमियम अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हो। टर्म इंश्योरेंस होता है 20 साल 25 साल के लिए टर्म इंश्योरेंस होता है, आप एवरी ईयर आप पैसा कंट्रीब्यूट करते हो और उस दौरान अगर आपकी मौत हो जाए, आप यू पास्ट अवे बिटवीन दोज पर्टिकुलर ईयर, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके लीगल हेल्थ को कुछ पैसा देता है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का इंटरेस्ट ये है टू प्रोटेक्ट द लाइफ और प्रोटेक्ट द गुड्स। तो such kind of an insurance contract are not called as a wagering contract. Such insurance contract are contingent contract and they are a valid contract. What it says, insurance contract are valid contract even though they provide for payment of money by the insurer on the happening of a future uncertain event. Such contract differ from wagering agreement mainly on three aspects. Contract of insurance are entered into protect an interest. In a wagering agreement, there is no such interest to protect and the parties bet exclusively because they can hereby make some easy money. Insurance contract का main objective है तो protection, यानी आप इंश्योरेंस कंपनी पे आपका रिस्क डाल दे रहे हो। यू आर पेइंग द प्रीमियम अमाउंट बट एट द सेम टाइम आपके लाइफ का रिस्क, आपके गुड्स का रिस्क, फायर का रिस्क आप किसी और के सर पे डाल रहे हो बाय पेइंग दैट अमाउंट। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन इज मेन ऑब्जेक्टिव, लेकिन वेजरिंग के केस में प्रोटेक्शन इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, वहां पे ऑब्जेक्टिव इज टू ओनली मेक मनी बाय विनिंग। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस are based on scientific and actual calculation of risk, whereas wagering agreement are gamble without any scientific calculation of risk. Insurance के केस में they carry out a calculation and accordingly they suggest you कि आपका इतना इंश्योरेंस आप निकाल सकते हो या आपके गुड्स का आप इतना इंश्योरेंस निकाल सकते हो। तो वहां पे एक कैलकुलेटिव बेसिस पे यू टेक आउट एन इंश्योरेंस। वेजरिंग के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। Contract of insurance are regarded as beneficial to the public, whereas wagering agreement do not serve any useful purpose. Wagering contract is disadvantageous to the society, is harmful to the society, whereas insurance contract are beneficial to the society. So this was a crux of this particular unit. I hope you have understood the meaning of wagering agreement. So kuch agreement they will be called as a wager, and some of the agreements such as insurance contract, certain commercial transactions, share transaction where the interest is not to make money by way of price fluctuation is not a wager, they are called as a valid transaction. However, if there is an main intention is to make money by way of price fluctuation, they will also fall under the wagering transaction. For the lottery, though it is a wager, but it has been authorized by the state and hence वहां पे बोला गया है कि इट इज अ वेजर, लेकिन उसमें आपको अगर उस ट्रांजेक्शन में आप एंटर्ड होते हो तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको स्टेट या कोर्ट हेल्प नहीं कर पाएगा। सिमिलरली अगर गेम ऑफ चांस या गेम ऑफ स्किल अगर है तो उसमें अपन ने देखा है कि अगर प्राइस कंपटीशन में अगर आप भाग लेते हो जहाँ पे प्राइज मनी इज लेस देन ₹1000 तो इट विल नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ वेजर।
उसके अलावा हॉर्स रेस का देखा है कि अगर 500 रुपए से कम अगर है तो वो वेजर में आएगा, और 500 रुपए के ऊपर अगर बैटिंग लगता है तो वो वेजर के ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा। तो this was the crux of this particular unit. I hope you have understood the concept. Still, if you have any doubt, you can ping me. Today I am going to apart from giving the notes of this particular unit, I am also going to post a long and short answer as regards to legality of the object and consideration, and also this agreement which are expressly declared as void. Bye everyone.